Good morning, everyone. Today we are going to do if then else and for programs as well. I guess everyone has a base of Q basic, so that's why I'm considering that we have remembered our if then else and they were there also. I'm just going to teach you how to write the statements in Java basically, and everyone is familiar with the question pattern because the question doesn't change, the language and the writing part changes in Java. Okay. So now let's focus on how to write it in Java. First, a mini introduction of loops, and then we will do some loops programs, and then I'll do some if then else program. And today you just have one homework, so don't worry, I have not given a list of homework to you. Okay. So let's focus on the program and let's continue with everything. Let's focus on this. Now basically loops क्या होते हैं यार? Loops क्या होते हैं? कोई अपने दिल से पूछे तो कुछ याद आ रहा है? Loops basically is a feature in a program which helps us to execute a set of instructions or a functions repeatedly. Means constantly if you want to do something, then it helps you to repeat the actions very easily. Now, like in QBasic in Java also, I have for loops, do while loops and while loops. Okay. Now, the pattern of writing for loops, do while loops and while loops is completely different. So, don't get confused with that. The names are same, but the pattern of writing will be totally haywire. So, let's understand how do we write loops in Java. So, if you are seeing on the right of the screen, you are seeing another picture of writing how do we write a loop in Java basically. Right, so you are seeing there is something called initialization. You would have heard when I had taught QBasic. The initialization, condition checking, and increment and decrement. Are we familiar with increment and decrement? Come on, say me. Yes, we are familiar. Postfix prefix किसने किया था? हम सब ने किया था ना. ऑपरेटर वाला चैप्टर किसने किया था? याद है कि नहीं है? भूल गए? थोड़े ज्यादा दिन हो गए, बट भूलना नहीं चाहिए हमें याद रखना चाहिए, 10 तक याद रखना है. तो वही इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट वाला लॉजिक यहाँ पे भी यूज करेंगे लूप्स के लिए, इसीलिए पढ़ाया गया था आपको. ठीक है, तो वही को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं कैसे लिखते हैं. पहले फॉर लूप सीखेंगे. फॉर लूप्स में अगर हमारा हाथ एकदम साफ हो गया तो वाइल और डू वाइल सीखने में हमें वक्त नहीं लगेगा. तो पहले फॉर लूप सीख लेते हैं, देखते हैं कि कैसे जाता है. अगर नहीं समझ आता है या नहीं होता है घर पे तो प्लीज आप बता दिया करिए मैसेज में या कमेंट में या किसी भी तरीके से, मैं चेक कर लूंगी कि आपको ये नहीं समझ आया तो मैं और एक वीडियो दूंगी, फिर और एक दूंगी, फिर और एक दूंगी. तो इस तरीके से मुझे आपके डाउट्स पता चलेंगे, बिकॉज घर पे आप हैं और मैं यहाँ पे हूँ, तो मुझे डाउट सामने मैं आपके फेस के रिएक्शंस नहीं देख पा रही हूँ कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो प्लीज इतना कष्ट जरूर करिएगा अपने टीचर के लिए, क्योंकि मुझे I don't have any godly power that I understand that you are understanding or not understanding. Okay, so do tell me that you have understood it or you need another class on this. Okay. Anyways, with practice and number of programs of practice, we'll definitely learn all the things, so don't worry. There's always a practice makes a man perfect. तो आगे फॉर लूप्स में क्या है ना, फॉर लूप्स में हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले ओनली वी जस्ट लिसन द वर्ड कॉल्ड इनिशियलाइजेशन. आफ्टर दैट देयर इज कॉल्ड लूप कंडीशनिंग एंड देन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट एंड देन वी राइट स्टेटमेंट्स एंड देन वी क्लोज द ब्रेस. इफ यू आर सेइंग वी ओपन द ब्रेस एंड वी क्लोज द ब्रेस, राइट, एंड सी द एंटायर थिंग ऑफ इनिशियलाइजेशन, लूप्स एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट इज गेटिंग सेपरेटेड थ्रू सेमीकोलन्स and and all this is in within third bracket, and then we are using second bracket or first bracket. I don't remember the bracket ka sequence, but this type of a bracket. Okay, so how to write a statement in for loop. QBasic में कैसे लिखते थे याद है ना, for i is equals to 1 to 10. फिर नेक्स्ट टाइम करते थे बीच में लिख के, फिर बिल्कुल वैसे नहीं करना है, भूल जाइए. उसके ऊपर एक बहुत बड़ा put a cross on your mind whatever you remember regarding QBasic on loops of writing the loop. Okay, so in Java how do we write? We write as if I want to print a number from 1 to 10, I want to print 1 to 10. Okay, so how will I do it in Java? I will write first the word called for, then I'll open a bracket. Bracket should be the bracket which is being shown in your screen and not the bracket which we were using earlier. Okay,
वो ब्रैकेट भी खुलेगा, बट वो ब्रैकेट ये स्टेटमेंट लिखने के बाद खुलेगा. ओके. And whenever there is only one statement after for loop, we usually don't use a bracket. But if there are more than one statements, which is usually going to happen, we will use a brace. Okay? जो हम लोग main के बाद brace खोलते हैं, वैसा ही brace हम लोग for के बाद खोलेंगे. But जो for loop का condition वाला part है, वो जो लिखेंगे उसके लिए यही brace होगा, जो आपके screen पे दिख रहा है. ठीक है? Now we always have to define an integer, so I have defined int I. राइट, वेरिएबल को डिफाइन करना पड़ता है ना कि इंटीजर है कि डबल है. सो आई हैव डिफाइंड इट एज इंटीजर आई means int I. Now I'm initializing. From where will my incrementation or decrementation start? I am initializing. I need to print from 1, so I'm initializing I as 1. If I had to print from 2, I would have initialized I as 2. If I would have to print I from 50, I would have initialized I as 50. So depends on what the program is saying, we will do the initialization over here. So currently I want to print from 1 to 10, so I'm initializing I as 1. Now till what level will I go up? I have told that I want to print from 1 to 10. So with a separator of semicolon, I am writing a condition that I कब तक चलेगा? I तब तक चलेगा जब तक I 10 नहीं हो जाता है in this case. So I will write I less than equals to 10. Moment the I becomes 10, I will stop working. Okay. So now next I am again using a separator using a semicolon and for an I plus plus. What will I plus plus do? I plus plus will be I plus plus is postfix or prefix? Comment me. I plus plus is actually postfix. So first it will use the I in the entire loop and then increment the value of I as 2. So next time I एक बार चलेगा, I 1 है तो I will always run once. एंड देन वो पूरा चल के पूरा ब्रेस जब तक बंद होगा, फिर वापस ऊपर आएगा, तब आई क्या होगा आपका 2 होगा. वापस नहीं समझ आया, वापस बोलती हूँ. I इक्वल्स टू 1 है, I इक्वल्स टू 1 इनिशियलाइज कर दिया है हमने, I प्लस प्लस यूज किया है, तो व्हाट इज इट? इट इज पोस्टफिक्स. पोस्टफिक्स मीन्स I will execute in this program because I is less than 10 कंडीशन फुलफिल है, I 1 है ऑब्वियसली. तो I इंक्रीमेंट कब होगा? I बीच में जो भी लिखा होगा उसको एक बार एग्जीक्यूट करेगा. एग्जीक्यूट करने के बाद क्या बोलते हैं ऊपर आएगा, तब I 2 होगा. और फिर से वो इस कंडीशन को रीड करेगा, I प्लस प्लस करेगा, मीन्स अपने हाथ में I अपने आप को 3 करेगा, अंदर का कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर ऊपर आएगा तब I 3 होगा. ठीक है, ये वाला लॉजिक को ध्यान से सुनिएगा. नहीं समझ आया रिवाइंड करिए प्लीज. अब क्या कहाँ इनिशियलाइजेशन हुआ? इंट I इक्वल्स टू 1 पे इनिशियलाइजेशन हुआ. लूप कंडीशनिंग कहाँ है? I लेस देन इक्वल्स टू 10 पे है. इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कहाँ कर रहे हैं? I प्लस प्लस पे कर रहे हैं. मैं अच्छा हाँ मैम क्यों प्लस प्लस आई नहीं कर रहे यार? तो फिर प्लस प्लस आई तो पहले आई को 2 कर देगा यार, फिर वापस अंदर जाएगा, लूप के अंदर जाएगा, लूप के अंदर तो I 2 हो जाएगा. मुझे तो 1 to 10 चाहिए यार, तो प्लस प्लस आई नहीं यूज कर पाएंगे ना, पोस्टफिक्स ही करना होगा ना, प्रीफिक्स नहीं करना होगा ना. ठीक है, फिर मैं SOPLN लिख दे रही हूँ, तो मुझे system.out.println शॉर्ट फॉर्म SOPLN. ओके, आई होप अभी तक आप प्रिंट स्टेटमेंट से फेमिलियर हो गए हैं. नहीं हुए तो और 5 बार लिख लेना अपने घर पे. system.out.println ब्रैकेट में I लिखा है, 1 to 10 प्रिंट करेगा. अब इसमें ना बहुत एक अच्छी बात मैं बता रही हूँ जो आप लोग करेंगे, क्योंकि मैंने कल बोला था कि हर स्टेटमेंट जावा में ब्रैकेट के अंदर सेमीकोलन से एंड होता है. कुछ स्टेटमेंट्स नहीं होते हैं मेरे बच्चों. मैं आपको बता दूं कि क्यों नहीं होते. कुछ स्टेटमेंट्स नहीं होते. जैसे फॉर लूप में प्लस प्लस के बाद I प्लस प्लस के बाद ब्रैकेट बंद करने के बाद सेमीकोलन प्लीज मत देना, वो ना वहीं पे उस लूप को स्टॉप कर देगा. तो वहां पे सेमीकोलन नहीं होता है. जब भी कोई भी इफ स्टेटमेंट्स लिखेंगे उस ब्रैकेट को बंद करने के बाद वहां पे सेमीकोलन नहीं होता, क्योंकि वो वहीं पे उस चीज को स्टॉप कर देगा. तो कहाँ पे नहीं होते सेमीकोलन? हाथ उठाइए और बताइए कहाँ पे नहीं होते. इट इज नॉट व्हेन देयर इज अ फॉर लूप कंडीशनिंग. व्हेनेवर देयर इज अ कंडीशनिंग स्टेटमेंट्स वी डोंट यूज सेमीकोलन एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट. सो फॉर लूप में नहीं होते, इफ में नहीं होते, बाकी सब जगह होते हैं. तो दिल पे हाथ रख के बोलिए मैं सेमीकोलन सब जगह लगाऊंगा एक्सेप्ट 2 प्लेसेस. ओके, और प्लेसेस ऐड होंगी मैं और बताऊंगी. उस खुशी में हम लोग एक प्रोग्राम करेंगे. क्या है प्रोग्राम भाई? सबने किया है ये प्रोग्राम क्यू बेसिक में. याद करो वो दिन जब पढ़ाया गया था.
क्या पढ़ाया था, मैं भूल गए, याद करते हैं. Write a program to calculate the sum of odd numbers and product of even numbers from first and natural numbers. Now product and sum we have to calculate. So product and sum के लिए odd numbers क्या होते हैं? First and natural numbers. मैम ये n बहुत नया आया है हमारे जीवन में. हमें लिमिट बोली है बेटा, यूजर से मांगना है what is the limit till where you want to print. Like if the user enters 5, will print from 1 to 5. If the user enters 10, will print from 1 to 10. If you remember, n was there in our life. So we will ask from user, and whenever we ask, अच्छा मैंने क्लास के नाम नहीं लिखे है ना शायद इस बार, मैं भूल गई ना क्लास लिखने के बाद. आप नेम लिख दीजिएगा ना, कुछ भी सम ऑब्लिक प्रोडक्ट, जो भी नाम लिखना हो प्लीज उतना कष्ट करिएगा, मैं भूल गई शायद. ये ना कॉपी पेस्ट का प्रॉब्लम सॉरी. तो क्लास के बाद नेम जरूर लिखना मत भूलिएगा, क्लास का नेम जरूर लिखना है हमें. मैंने नेम आपके लिए फिर इन द ब्लैंक्स छोड़ा है, आपको जो नाम लिखना है लिखिएगा. पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इंट एन. तो इंट एन इज व्हाट, इंट वी वांट द वैल्यू ऑफ एन फ्रॉम द यूजर, वी वांट द लिमिट फ्रॉम द यूजर टिल वेयर द लूप विल रन. सो वी आर आस्किंग द लिमिट फ्रॉम यूजर. int I had not defined it within the loop. प्रीवियस वाले स्लाइड में मैंने लूप के अंदर लिखा था क्योंकि एक ही स्लाइड में लिख रहे थे. इस बार मैं बहुत सारे लिख रही हूँ तो मैंने int I बाहर ले लिया. अब डबल p को मैंने 1 लिया है क्योंकि प्रोडक्ट को इफ यू रिमेंबर एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 becomes 0 and by default if any variable is not defined its value becomes 0. So that's why I need to mention that p is 1. So that whenever I am multiplying, it multiplies it by 1 and not 0. Because by default, if I don't define p, it will be 0. And then sum will be 0. And exam, you will get 0. Okay. And I'm even being a good bacha and saying sum is also 0. Okay. If you want to write s just 0, you can write. By default, the value of s is 0 only. But it's good to write because, you know, Xavier's requires more explanation to everything. Especially Chitranchu and Suryansh. Because your teacher makes extra writing in everything. So you need to define it. For you. I don't know about Shrinuj because Khushal and Shrinuj's teachers are very lenient on all these areas. So now let's write on the exceptions are always there in class schools. Okay, some people like more, some people like less. So leave that. We'll focus on our for loop. For loop कहाँ से कहाँ तक चलाना है, 1 से लेके n तक चलाना है. तो कंडीशन क्या होगी, for I equals to 1, I is initialization, I is less than equals to n, n means till n it will work, and then I plus plus, लास्ट में सेमीकोलन नहीं लगाने. एकदम सही, एकदम. नाउ सी, नॉट इक्वल टू वाला चीज मैंने पढ़ाया था, अगर नहीं याद है तो इफ वाला कंडीशन वाला जो मैथ फंक्शंस वाला क्लास है ना वो वापस कर लेना कि कैसे लिखा जाता है, यू नो. तो मॉड का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, मॉड होता है, मॉड्यूलस इन जावा. ओके, so I want to check when I is not equal, I mod 2 means when I am dividing 1 by 2 and if my answer is not coming 0 then it is a odd number, and if my answer is coming 0 when I will be 2, so 2 divided by 2 my remainder will be 0 na. So when my remainder is 0 then it is a even number, and when my remainder is not a 0 then it is a odd number, right? So that only I am writing. In Java we write as this. See, in QBasic we used to use 1 equal to, but in Java we use double equal to. Okay, so whenever we want to find equal to something then we use double, and when we use when I have to use not means not equal to something, then it is not means exclamation ka sign and equal to ka sign is equals to 0. Means I mod 2 means I divided by 2 when the remainder is not equals to me means exclamation mark equal to sign and a 0, then my answer is a odd number. Odd में क्या करना है बच्चों, sum calculate करना है. I am using s is equals to s plus I. Come on, इतना तो सबको आता है. अब s plus I मैं नहीं समझाने वाली, और नहीं समझ आ रहा है तो फोन करना, मैं पक्का समझा दूंगी. If I mod 2 is equal to 0, p is equals to p into I. p into I जब even है तो क्या करना है, प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है. तो else केस में मैं प्रोडक्ट कैलकुलेट करूँ. अब आप ये भी बोलोगे कि मैम अगर नॉट इक्वल टू था तो else में तो वो इक्वल टू ही होगा ना. हाँ होगा, मैं तो ये लिखना का सिखा रही हूँ ना, इसीलिए मैंने लिखा. आप सिंपली else p is equals to p into I भी कर सकते हैं.
स्कूल में ऐसे भी करा सकते हैं, मैं अभी आपको डिटेल में समझा रही हूँ, इसीलिए मैंने एल्स इफ करके भी वो कंडीशन लिखा है, क्योंकि हमें इफ लिखना सीखना है, कंडीशन लिखनी सीखनी है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग सम एक्स्ट्रा मेहनत ओवर हियर, एंड दैट्स इट. आफ्टर दैट आई विल क्लोज द फॉर लूप का ब्रेस. इफ यू रिमेंबर, आई had opened it before, after I had written I++, my conditions are fulfilled, and then I will print simply S and P. And with an inverted comma, it will be printed as it is. I will use plus as a separator, and then I'll use a variable in which my sum is getting calculated, and in product getting calculated. If you're not understanding how it is happening, you do comment me or do call me. I'll definitely explain you how it is happening. But I guess everyone remembers how we used to calculate the sum and even wala thing. The same thing is over here. Just the writing pattern has changed. That's it. So let's focus on the next program. What is the next program in our life? Say hello to series. Come on. We are using loops. So we'll say hi to series. Now चलो एक प्रोग्राम अच्छे से लिए, अच्छे बच्चों के जैसे अपने लिए होमवर्क में लिख लो. तो चलो, write a program to calculate the sum from 50 to 70 and product and subtraction from 50 to 70. Come on. प्रोडक्ट ही सबट्रैक्शन नहीं, सबट्रैक्शन थोड़ा वो हो जाएगा नहीं. तो 50 से लेके 70 तक आप सम कैलकुलेट करेंगे और प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, मैंने आपको कोई यूजर इनपुट नहीं चाहिए, मैंने लिमिट दे दिया है, तो वो ब्रेस में खाली नॉर्मल ब्रेस रहेगा, राइट. एंड बाकी जहां तक सवाल है आपका ये ब्यूटीफुल वाला प्रोग्राम करने का, तो आप लोग कर सकते हो. और एक प्रोग्राम करो. चलो 1 से लेके n तक मुझे क्यूब वाला करके देंगे आप. मैं स्क्वायर वाला कर रही हूँ, आप क्यूब वाला करके देंगे. 1, 8, 27, 64, 125 वाला चीज. ओके, 2n. ये 2 प्रोग्राम्स आप होमवर्क में करिए अपने लिए. तब तक हम लोग ये वाला प्रोग्राम समझते हैं. हमें लिमिट अगेन हमें यूजर से चाहिए, तो int 10 हम लोग लेंगे. अगेन मैंने क्लास का नाम नहीं लिखा है, प्लीज आप क्लास का नाम लिख लीजिएगा. क्लास के बाद क्लास का नेम आता है, तो ये सीरीज 1 करके या कुछ भी नाम दे दीजिएगा. ओके, int I PP s is equals to 0. वेरिएबल्स हमारे सेम है. सम और प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है. p को 1 क्यों किया वो प्रीवियस में मैंने बोला, वही समझ ले, वहीं से सुन लेना. अब क्या करना है, हमें सम और प्रोडक्ट दोनों कैलकुलेट करना है इस सीरीज का. सो 1 से लेके n तक जाएंगे, इनिशियलाइज करेंगे. i is equals to 1, i is less than equals to n, i++ करेंगे. फिर क्या करेंगे, math.pow यूज करेंगे. मैंने बोला था ना कि हम लोग पावर वाला फंक्शन यूज करेंगे, मैथ फंक्शन यूज करेंगे. तो बस यही कर रहे हैं ना हम लोग को स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो i⁻²₂ करना है. तो ऐसे लिखते हैं जावा में, s is equals to s प्लस मैथ का m हमेशा कैपिटल होता है, अपर केस लोअर केस का जावा में प्लीज ख्याल रखना, बिकॉज जावा इज बेसिकली अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज एंड यू नीड टू यूज अपर केस एंड लोअर केस वेरी सेंसिटिवली. लाइक सिस्टम्स s is always capital, मैथ का m is always capital. You cannot do upper case lower case game in Java. Okay, so what is in caps you'll always have to write in caps, and what is in small you'll always have to write in small. So you have to be very sensitive when you are writing this language. Okay, so s is equals to math m capital dot pow bracket. We'll write first the variable, means I to the power how much. अगर 3 होता तो I would have written 3. If I would have wanted cube, then I would have written 3. If I wanted square root, then I would have written 1/2. So it depends on how we want it. So I comma 2, I want square. So I 1 to the power 2, 2 to the power 2, 3 to the power 2. Will keep adding in S and keep multiplying in P. And then I close the for loop, and then I print within the main the sum and the product, and then I close all class brace and main brace. So please remember that you need to do that explicit conversion in this slide as well. And then if amount is equals to क्या बोला था, amount should be less than 1000, and if the item is M, then we'll give 2% discount. If the item is H, we'll give 5% discount. If it is greater than 10,000 and 1,000 and less than 5,000, तो हम लोग 20 or 25% discounting. When there are a lot of statements in if, then we open a brace. If there is only one statement, again the rule is same, we don't open a brace. Okay, so if the amount is less than 1000, if the amount is less than 1000, what will be?
then we will check whether the item is M or item is H. Now it is character मैम equal to use कर सकते हैं, हाँ use कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं, बट स्ट्रिंग में नहीं कर सकते, ये कैरेक्टर है इसीलिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक कैरेक्टर है तो वो सिंगल कोट में आएगा, ठीक है। पूरा नाम अगर होगा तो वो स्ट्रिंग हो जाएगा एंड विल कम इन डबल कोट्स। इफ आइटम इज इक्वल्स टू एम तो डी डिस्काउंट है हमारा, डिस्काउंट क्या होगा 2/100 हो जाएगा, परसेंटेज था ना 2% तो 2% क्या होता है 2/100 होता है ना। एल्स में आप सिंपली d is equals to 5/100 भी लिख सकते थे, बट वी आर लर्निंग हाउ टू राइट द स्टेटमेंट, सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन एल्स इफ आइटम इज इक्वल टू 1 में h 1 कोलन्स में एंड देन वी विल क्लोज द ब्रेस। अगर ये नहीं है तो क्या है एल्स क्या है, एल्स इफ अमाउंट ग्रेटर देन है 1000 एंड अमाउंट इज लेस देन इक्वल्स टू 5000 तो आइटम m 20%, आइटम h 25%। टोटल हम लोग इफ कंडीशन में बहुत सारे स्टेटमेंट्स थे तो मैंने एक ब्रेस खोला था, एल्स कंडीशन में बहुत सारे स्टेटमेंट्स थे तो मैंने एक ब्रेस खोला था, वो भी मैंने बंद किया, बट मैंने इफ के बाद मेरे को खाली डी का वैल्यू लिखना था तो मैंने इसीलिए वहां पे कोई ब्रेस नहीं खोला है, ओके, क्योंकि वो एक ही स्टेटमेंट था। अब सारे के बाहर निकल के व्हाट विल आई डू, आई विल कैलकुलेट द टोटल इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस डिस्काउंट, सो आई विल डू अमाउंट माइनस अमाउंट इनटू डिस्काउंट। मतलब अगर 1000 का मैंने परचेज किया था तो 1000 कौन से में आता है, एल्स वाले में आता है। हाउ मच डिस्काउंट विल आई गेट इफ आई हैव परचेज्ड m, आई विल गेट 20% डिस्काउंट ऑन 1000। सो कैसे कैलकुलेट होता है, 1000 इंटू 20% होता है, राइट। तो 1000 इंटू 20% मीन्स अमाउंट इंटू 20% आई हैव डन, वो अमाउंट से ही माइनस होगा ना, तो 1000 माइनस 1000 इंटू 20%, सो क्या होगा 1000 माइनस 1000 इंटू 20%, 10% कितना होता है आपका 100 रुपया होता है, 20% 200 होगा, तो अमाउंट 1000 माइनस 1000 इंटू 20%, सो 1000 माइनस 200 मीन्स आंसर आएगा कि टोटल में 800, जो सिस्टम डॉट प्रिंटलिंग करके द कस्टमर विल पे द अमाउंट सेपरेटर प्लस 800, ऐसे करके हम लोग ये लिखेंगे। अब ये जो प्रोग्राम मैंने लिखा है अगर नहीं समझ आती तो कॉल करके समझ लेना। और एंड क्यों लिखा है, हमने बोला था ना कि हर चीज डबल लिखते हैं यहाँ पे, एंड और सब कुछ डबल इक्वल टू, ये इसीलिए यही रैली में जाएगा, ओके, जावा में इट्स अ वे ऑफ राइटिंग द लैंग्वेज बेसिकली। नाउ नेक्स्ट होमवर्क exactly same as the previous one, you just need to change the discount figures and थोड़े statements ज़्यादा लिखने हैं, and I hope you will try it. Thank you for being wonderful listeners. Do come back to the channel again. We'll keep continuing, keep teaching, keep enjoying, and till the lockdown continues we will keep meeting like this.